मैं 9th में थी जब मैंने ये एंट्री लिखी. तो let me just read it out to you and then we will get into the video, okay? Dear diary, my parents think they caught a devil in disguise, which is me. They hate me so much that if murdering wasn't a crime, I would have died by now. I never understand them. Sometimes they treat me like a parent and sometimes like I am adopted. For example, today, from the morning I have been beaten thrice or so. Taunts are permanent. I'm trying hard to kill this innocent, dumb girl inside of me, but it never happens. No matter how hard I try. I also don't really have many friends right now, which is surprising for someone like me who used to make friends everywhere. The reason being, my parents told me during lockdown that I should avoid making friends, and now as 9th started, the one thing I avoided making was making friends. And all of them think that I am someone who is very introvert, awkward, shy girl, who don't even know how to have fun. I wish I could show them my real self. I also don't go to any parties because my parents hate it. They say that it's just waste of time and it's very childish. Reminding you, I was in 9th grade, okay? Anyways, I just had a bath under a cold shower. Not like I wanted to, but my emotion. And just to mention, this is another entry that I'm reading right now, and it is at midnight, like 11:30 or something like that. Yeah, so not like I wanted to, but my emotions and hurtful taunts of my mother forced me. It's not a big deal for me on normal days, but unfortunately this was not normal at all. I got sick from the time my eyes were opened. I was and am having a normal cough, but sadly I can't say same for my head. It's been hurting as if someone had hit it with a baseball bat. I've also tried getting in an accident, but I never get more injured, which can make them care for me. One thing for sure has been confirmed, that I'll never get the same love I used to get before. So this is me when I was in 9th grade, and I was just going through all my journals and diary. Like, this is my 9th grade diary. I know it's very childish, but who cares? So, and I was just going through, right? So my first entry was somewhat like this. Then I went to another entry, and I realized कि कितने सारे लोग, कितने सारे बच्चे, mostly teenagers, फैमिली ट्रॉमा से गुजरते हैं, और फैमिली कितनी टॉक्सिक होती है और वो कैसे उनकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर सकती है. लाइक दिस वाज मी इन 9th ग्रेड, बट एक्चुअली मेरी एक और डायरी थी जो मेरी मम्मी ने उस टाइम जला दी थी, एज शी टोल्ड मी, बट आई थिंक उन्होंने बस फेंक दी होगी. और उस डायरी में मेरी एंट्री 6th से स्टार्टिंग थी. Everything started from 7th grade when my little sister was born, and I'm very grateful to have her. But things changed for me after that. So for 7th, 8th, 9th, 10th, I literally had to go through hell. I'm not exaggerating it at all. So as I was going through this reading, वो सारी memories एकदम flashback हुई, स्पेसिफिकली 9th and 10th की. वो 9th and 10th के जो 2 साल रहे हैं ना, दे डिफाइन मी. लाइक आई हैड टू गो थ्रू अ लॉट इन माई हाउस एज वेल एज इन माई स्कूल, क्योंकि मेरे स्कूल में ही मैंने स्टार्टिंग बहुत फॉल्स नोट से की थी. मेरे पेरेंट्स से मुझे लॉकडाउन के टाइम, लाइक 9th लॉकडाउन के बाद स्टार्ट हुआ था, तो लॉकडाउन पूरा 2-3 साल मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया, स्पेसिफिकली मेरी मम्मी ने, कि ज़्यादा फ्रेंड्स मत बनाना, अब पढ़ाई में ध्यान रखना, फ्रेंड्स बनने नहीं चाहिए, ज़्यादा ध्यान मत देना, वगैरह वगैरह. बिकॉज आई वॉज अ किड, लाइक नहीं, आई वॉज दैट चाइल्ड एंड आई एम स्टिल अ पर्सन जो पूरी ट्रेन के डब्बे को दोस्त बना लेती थी.
Like मैं, आई एम नॉट जोकिंग गाइज, आई वॉज अ फ्रिकिंग एक्सट्रोवर्ट एंड आई एम स्टिल नाउ, बट ठीक है, वो अब मूड पे डिपेंड करता है. एनीवेज, ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो फैमिली, जिनकी फैमिली इन शॉर्ट टॉक्सिक है, एंड स्पेसिफिकली दिस इज़ फॉर टीनेजर्स जो बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, एंड समटाइम्स दे ऑल्सो ट्राई टू डू वेरी बैड थिंग्स. यू गेट माई पॉइंट. तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है. पता है, मैं इसी रूम में मैं यहाँ पे बैठती थी. यहाँ पे एक कॉर्नर है, मैं वहाँ पे बैठती थी और मेरे हाथ में कोई कुछ तो शार्प होता था और मैं बहुत रोती रहती थी जब मम्मा मुझे मार के भेजती थी वगैरह वगैरह. और यहीं पे बैठ के मैं आई यूज टू डू थिंग्स. कल व्हेन आई गॉट दिस डायरी, मैंने अपने उस यंगर सेल्फ को इमेजिन किया यहाँ पे वो सब करते हुए, एंड एज एन अडल्ट मैं उसके सामने यहाँ पे बैठी थी. अगेन मैं उसे इमेजिन कर रही थी कि वो ये सब यहाँ पे कर रही है, मेरी 9th ग्रेड वाली सेल्फ. एंड आई क्राइड एंड आई बेग्ड हर कि प्लीज़ ऐसा कुछ मत कर, प्लीज़ बिलीव रख कि तेरी लाइफ सुधरने वाली है, प्लीज़ ट्रस्ट मी दैट यू आर गोइंग टू फ्रिकिंग एन्जॉय एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ. हर एक पल में तू यूनिवर्स को थैंक यू बोलेगी इस लाइफ के लिए. प्लीज़ ऐसा कुछ मत कर. आई नो यू आर स्ट्रॉन्ग एंड आई नो एवरी थिंग इज़ डिफ़िकल्ट. मुझे पता है तेरे पास कोई होप नहीं है, मुझे पता है तुझे हर चीज़ एंड करनी है, बट प्लीज़ होल्ड ऑन, प्लीज़ डोंट एंड योर सेल्फ, प्लीज़. बिकॉज जो फ्यूचर में है तेरे लिए, यू डोंट इवन रियलाइज. और उस टाइम मेरे पास नहीं थी कोई होप यार. मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ कैसे सुधरेगी, लेकिन मेरी लाइफ सुधरी. मैंने 10th के बाद अपना स्कूल बदल दिया था क्योंकि मुझे 2 साल लग गए. ये लाइक 2 साल तो नहीं, मुझे पहले ही पता चल गया था कि दिस इज़ नॉट मी, जो बिना स्पॉटलाइट में बिना रह सकती है. तो लेकिन इट वॉज़ टू लेट, क्योंकि मैंने अपनी वो एक पर्सनैलिटी स्कूल में डेवलप कर दी थी कि शी इज़ दैट ऑकवर्ड किड. तो आई स्वेयर मैंने इतनी एम्बैरसिंग चीज़ें की हैं 9th and 10th में, एंड आई हैव बिन बुलीड सो मच. और उन बुलीज को ही मैं अपना फ्रेंड समझती थी. आई नो आई हैव गॉन थ्रू वर्स. लाइक अभी भी अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट मोमेंट से जाती हूँ ना, एंड आई नीड मोटिवेशन, मैं उस मोमेंट के बारे में सोचती हूँ कि वो 2 साल, एक्चुअली 2 साल भी नहीं, वो 4 साल जो मैं सह चुकी हूँ, घर में भी और स्कूल में भी. 2 साल स्कूल के और फिर 4 साल बिहाइंड द सीन्स घर में जो मैं सह चुकी हूँ. अब तो मेरी लाइफ में कुछ भी आ जाए मैं सब सह लूँगी. लाइक आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर एनीथिंग नाउ. तो हाँ, तो मैं उसको इमेजिन कर रही हूँ यहाँ पे, राइट. मैंने आंखें बंद की हैं एंड आई एम इमेजिनिंग एंड आई एम टेलिंग दैट यंगर सेल्फ ऑफ माइंड कि प्लीज़, आई नो तेरे पास कोई होप नहीं है, बट डोंट गिव अप. और तब मैं सोचती थी, मैंने जैसे इसमें भी लिखा ना, कि मैं ट्राई करती हूँ इट एंड्स, कि वो है सब कुछ ख़त्म हो जाए, वो नहीं हो पाता है वगैरह वगैरह. पता है क्यों नहीं हो पाता था उस टाइम व्हेन आई यूज्ड टू एंड माई लाइफ? पता है व्हाई आई यूज्ड टू फेल एवरी सिंगल टाइम? क्योंकि मेरा जो ये प्रेजेंट सेल्फ है ना, क्योंकि जो मैं हूँ ना, मेरा ये, मुझे नहीं पता तुम्हें मल्टीवर्स एनर्जीज में बिलीव है या नहीं, यूनिवर्स में बिलीव है या नहीं, आई बिलीव इन इट. तो उस टाइम why I used to feel every single time whenever I try to harm myself, या whenever I try to end it, वो सब फेल इसीलिए हुआ क्योंकि मैं उसको यहाँ से बोलती थी कि प्लीज़ बिलीव रख, कि प्लीज़ हिम्मत मत हार, कि तुझे नहीं पता है कि तेरी लाइफ कितनी सुधरने वाली है. मुझे पता है कि तुझे लग रहा है कि तू बहुत अकेली है, पर मैं हूँ तेरे साथ. ये सब मैं बोलती थी. और इसको हम हायर सेल्फ बोलते हैं टेक्निकली. हायर सेल्फ, हायर सेल्फ तुमसे अगर तुम्हारा इंट्यूशन अच्छा है, तुम्हारा हायर सेल्फ तुमसे बात करेगा, वो तुम्हें बोलेगा कि अभी गिव अप मत करो, या वो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है. आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, दैट्स इट. तुम नहीं करते, इट्स फाइन. सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं. मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाली कि गो बी रिलीजियस, गो बी स्पिरिचुअल, और ना ही तुम मुझे करने वाले हो कि क्यों है तू वगैरह वगैरह. Let's enjoy our own decisions. You don't believe in spirituality, let's be besties. You believe in spirituality, let's be besties. Who care? Like मेरे फ्रेंड ग्रुप में भी मेरे 2 दोस्त हैं. एक को बिल्कुल
भरोसा ही नहीं है एंड एथीस्ट टाइप ऑफ बंदा है वो, एंड दूसरी को शी बिलीव्स इन मी, तो शी बिलीव्स इन स्पिरिचुअलिटी एज वेल, आई डोंट नो, बट हाँ। तो वेयर वर वी, तो उस टाइम वाई वाज आई फीलिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि मैं अब मेरा प्रेजेंट सेल्फ जानता है ना कि सिर्फ 9th और 10th में ही मुझे सहना था जो भी सहना था, उसके बाद मेरी लाइफ सुधरी। वो तो मैं जानती हूँ ना, वो नहीं जानती है, वो उस टाइम पे नहीं जानती है उस चीज़ों को, इसीलिए उसके पास कोई होप भी नहीं थी, उसे लगा कि उसकी पूरी लाइफ अब बर्बाद हो गई है। मुझे पता है ना नहीं हुई है, मुझे पता है नहीं हुई है, और मैं उसको जब सोचती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे ये चीज़ बताऊँ कि नहीं हुई है, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। अब ऑब्वियसली वो एकदम से तो पकड़ेगी नहीं वॉइस मैसेज की तरह, पर वो अंदर से उसे जो चीज़ थोड़ी सी भी झिझक या थोड़ा सा भी जो रोक रही थी, वो मैं थी। अगर तुमने इंटरस्टेलर देखी है तुम मेरी बात को एकदम समझ जाओगे। बस अब मैं इसीलिए अगर अभी तुम अपनी लाइफ में बहुत बुरी बुरी चीज़ों से गुजर रहे हो या बहुत हार्डशिप से गुजर रहे हो, लाइक टॉक्सिक फैमिली से सराउंडेड हो, तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स तुम्हें समझते नहीं हैं, आई नो इट्स ऑल वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है वो सब, राइट? आई अंडरस्टैंड इट, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड इट। मैं उन चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। ऐसे इन्वायरमेंट में रहना क्या, सांस लेना भी इतना घुटन वाला हो जाता है। आई गेट इट, ट्रस्ट मी। लेकिन पता है मैं कैसे सरवाइव कर पाई 10th के बाद? पहली बात, मैंने खुद को पहचाना कि मैं कौन हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि कहीं पे पार्टिसिपेट, मैं बहुत पार्टिसिपेट करती थी, आई वाज सच एन एक्टिव चाइल्ड बचपन से ही, बचपन से ही। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे अगेन लॉकडाउन में बोला ये मत करना वो मत करना, और मैंने उनकी सुनी, और इसीलिए मेरे 2 साल स्कूल में भी बर्बाद हो गए। घर में तो उन्होंने किया ही था, स्कूल में भी हो गए, लेकिन 9th और 10th के बाद आई डिसाइडेड कि मैं ये जो नए इन्वायरमेंट में जाऊँगी, नए स्कूल में जाऊँगी, नए इंस्टीट्यूट में जाऊँगी, वहाँ पे आई विल बी मी, एंड वहाँ से मेरी लाइफ बदल गई। I was just being me. I was just being myself and I enjoyed it. और घर में रहा वो माहौल, तो मैंने क्या किया, मैंने खुद को उनसे डिस्टेंस कर दिया। I was emotionally distant from them. वो कभी मेरे आसपास आने की भी कोशिश करेंगे या मुझसे इमोशनली बॉन्डिंग करने की भी कोशिश करेंगे, I would just give मैं बहुत उन्हें वेग आंसर्स देती थी कि ठीक है, कुछ नहीं हुआ, हाँ मैं कभी उनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हुई ही नहीं। इंडियन पेरेंट्स का ना यही होता है, वो ना एक बार में तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और फिर दूसरे ही टाइम वो बेस्ट फ्रेंड्स तुमको मारेंगे या तुमको टॉन्ट देंगे। और अगर हाँ, लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, इस वीडियो में ना ही तो हम पेरेंट्स को हेट करेंगे और ना ही हम अपने दर्द को नीचा करेंगे। इट नेवर मैटर्स, ठीक है? मान लो यहाँ पे एक ए पर्सन है, उसके पेरेंट्स उस पर बस चिल्ला रहे हैं, हाथ वाथ कुछ नहीं उठाया, बस चिल्ला रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, जब भी गुस्सा हो जाता है तो अवॉइड करते हैं। और यहाँ पे एक बी बच्चा है जिसके मम्मी पापा उसको पीट रहे हैं, कूट रहे हैं, उसको कमरे के अंदर बंद कर रहे हैं। तुम मुझे बताओ दोनों में से कौन ज़्यादा सफ़र कर रहा है? अगर तुमने मुझे आंसर दिया बी, या अगर तुम्हारे पास आंसर बी आया, तो तुम ये गलत कर रहे हो, क्योंकि दोनों सेम दर्द से गुजर रहे हैं। कि भले तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे बस चिल्लाते थे, तुम्हारे दोस्तों को पीटते थे, इट नेवर मैटर्ड। तुम्हारा दर्द कभी छोटा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उस दर्द से तुम गुजरे हो, तुम्हें पता है तुम्हें कितना दर्द हुआ था, तुम्हें पता है तुम कितने सेंसिटिव हो। तो ये दुनिया वाले बोलेंगे, बोलने दो कि इतनी छोटी चीज़ में कैसे दर्द हो गया इसको, इतनी छोटी चीज़ में कैसे बुरा लग गया, क्योंकि तुम सेंसिटिव हो। वो कैसे डिफाइन कर रहा है तुम्हारे दर्द को? तो वो दर्द तो तुमने सहा है ना, उन्होंने थोड़ी सहा है। तो नेवर लेट एनीवन टेल यू कि तुम्हारा दर्द कितना अनइम्पॉर्टेंट है। और ऐसे लोग मिलेंगे तुम्हें तुम्हारी लाइफ में। तुम्हारे खुद के पेरेंट्स एट सम पॉइंट बोल सकते हैं कि ये तो छोटी छोटी बातों में रोने लग जाता है या रोने लग जाती है। तुम सेंसिटिव हो, रो, तुम्हें दर्द हुआ है, रो। कभी भी अपनी लाइफ में अपना दर्द या सामने वाला का भी दर्द कंपेयर मत करना। तुम्हें नहीं पता वो कितनी सेंसिटिव सोल है, तुम्हें नहीं पता वो कितने दर्द से जा रही है। भले वो चीज़ तुम्हारे लिए छोटी है या भले तुम्हारी चीज़ सामने वाले के लिए छोटी है, तुम्हें पता है तुम कितना गुजरे उस चीज़ से, या सामने वाले को पता है वो कितना गुजर रहा है उस चीज़ से। तो कभी भी
किसी के दर्द को छोटा मत मानना, गॉट इट? और ना ही खुद के दर्द को छोटा मानना। तो पहली चीज़ जो मैंने की वो थी, मैंने खुद को इमोशनली डिस्टेंट कर दिया। एंड गेस व्हाट, मैंने जब खुद को इमोशनली डिस्टेंट करा ना, मतलब मैं उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करती थी, तो वो मुझ पे कमियां भी नहीं निकाल पाते थे, या अगर मुझ पे बुराई भी करते तो मेरे सामने नहीं कर सकते थे, और अगर करते भी थे तो मेरे पीठ पीछे करते थे, पर वो नहीं कर पाते थे क्योंकि मैं उनके साथ ही टाइम स्पेंड नहीं करती थी। तुम समझ रहे हो? तो मैंने ना जैसे जैसे खुद को इमोशनली डिस्टेंट करना स्टार्ट कर दिया ना, वो और पास आने लग गए मेरे लिए। एंड इट्स अ गुड थिंग। देखो यार, किसी भी पेरेंट के ना अपने बच्चों को लेके ईविल इंटेंशंस नहीं होते हैं, बुरे इंटेंशंस नहीं होते हैं, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो जिस तरीके से अपने इंटेंशंस को बाहर तुम पे दिखा रहे हैं वो सही है। मेरे पेरेंट्स के इंटेंशंस मुझको लेके नहीं थे बुरे, तुम्हारे पेरेंट्स के इंटेंशंस तुमको लेके नहीं है बुरे। उन्हें जो लग रहा है सही है वो कर रहे हैं, लेकिन वही बात है ना, इट डजेंट मैटर उन्हें क्या लगता है। व्हाट मैटर्स इज कि क्या तुम्हें वो सही लग रहा है, क्या तुम उस चीज़ को सह पा रहे हो। और अगर इसका जवाब ना है तो फिर ये करो, खुद को इमोशनली डिस्टेंट करो, खुद डिस्टेंस लाओ अपने और उनके बीच। जितना डिस्टेंस में रहोगे, जितना कंजर्व्ड रहोगे, उतना तुम्हें कम दर्द होगा। दूसरी चीज़, सोच को बदलो। तुम अभी एक टीनेजर हो, ठीक है? तुम 1 साल रहोगे, 2 साल रहोगे, 3 साल रहोगे, 4 साल रहोगे, 5 साल रहोगे अपने इस घर में, राइट? वो साल ख़त्म होते ही तुम इस घर से निकल जाओगे, और फिर तुम इतना ऐसे तो कभी नहीं रहोगे इस घर में, राइट? तो ये सोचो कि यार, अगर मैं कभी फ्यूचर में जाके जब इस घर से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी, और मैं कॉलेज में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, और हम सब एक शाम को हम सब दोस्त बात कर रहे होंगे और सब अपने घर के खाने की बात कर रहे होंगे, तो मैं भी सोचूंगा, ये सोचूंगी कि यार मम्मी का खाना तो बहुत अच्छा था। तो तुम सोचो ना, तुम खुद सोचो। अभी भी हम बोलते हैं ना, कभी कभार क्लास में बात होती है, कॉलेज में भी होती है, ठीक है? या कॉलेज में तुम अपनी फैमिली को मिस करोगे, या कॉलेज में तुम अपनी फैमिली का खाना मिस करोगे, या अगर कुछ अच्छी मेमोरीज होंगी उन्हें मिस करोगे। इस मोमेंट में जो तुम गुजर रहे हो, जिस चीज़ से तुम गुजर रहे हो, उसको अपने अंदर इतना कर लो, उस मोमेंट में इतना जियो, उस दर्द को इतना फील करो कि फ्यूचर में ऐसा मौका ही ना आए कि तुम्हारे अंदर से ये आवाज़ आए कि यार काश मैं मम्मी पापा के साथ रह रहा होता या रह रही होती। एज सिंपल एज दैट। When I was going through things, जब मैं चीज़ों से गुजर रही थी, मैंने ऐसे सोचना स्टार्ट कर दिया था कि यार अब अगले महीने या अगले साल, मेरे लिए अगले महीने कुछ था कि अगले साल, तो तुम अगले साल कर लो या अगले महीने कर लो, सूट योरसेल्फ। मेरे लिए अगले महीने था कि यार अगले महीने या उस 2 महीने के बाद तो मैं यहाँ पे से निकल ही जाऊँगी, अपने कॉलेज में अपनी एक नई लाइफ जीऊँगी। मैं नहीं चाहती कि मैं इन लोगों को ऐसे मिस करूँ। लाइक नेचुरली मिस करना इज़ गुड, बट मैं कभी भी ये नहीं चाहती थी कि मेरे अंदर से ये आवाज़ आए कि काश मैं अपने मम्मी पापा के साथ रह रही होती। और इसीलिए वो आवाज़ ना आए मेरे अंदर, इसीलिए मैंने अपने घर में, मुझे जब भी दर्द हुआ मैंने उसको इतना फील करा। मैं बता रही हूँ, लाइक लोग एस्केप करने की कोशिश करते हैं, लोग प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, या दोस्तों को बोल के अपना मन हल्का कर लेते हैं। नहीं, मैंने गाने भी नहीं लगाए, बट मैं उस मोमेंट में अकेले बैठ के पूरा फील करती थी। लाइक नींबू होता है ना, नींबू की तरह उस मोमेंट को पूरा निचोड़ के पूरा टेस्ट कर लेती थी। और अब मैं मिस करती हूँ उनको, राइट? मैं उनसे मिलने भी जाती हूँ, एंड आई लव देम, क्योंकि एट दी एंड आज जो मैं हूँ, मैं उन्हीं की वजह से हूँ। भले ही उन्होंने दर्द दिया हो, पर मैंने उस दर्द से भी बहुत चीज़ें सीखी हैं। भले ही मेरे स्कूल के वो 2 साल के जो बुलीज थे, उन्होंने मुझे पेन दिया हो, मुझे परेशान किया हो, मुझे दर्द दिया हो, उस दर्द से भी मैंने कुछ सीखा ही है। और ये माइंडसेट थी मेरी कि कभी भी कुछ बुरा हुआ मेरी लाइफ में, कभी भी कुछ बुरा हुआ है, मैंने उससे कुछ ना कुछ तो सीखा ही है, कुछ ना कुछ सीखा ही है। इसके बारे में मैं दूसरी वीडियो बना दूँगी, राइट? वेयर वाज आई? हाँ, तो मैं अभी भी उनसे बात करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक बार भी ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि काश मैं उन लोगों के साथ रह रही होती, क्योंकि मेरे अंदर, मेरी रूह को पता है कि जब मैं उनके साथ रह रही थी उसे कितना दर्द हुआ। ठीक है, ये 2 तरीके हैं बस गाइस। तुम जाओ यूट्यूब में सर्च करो, तुम्हें बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, कुछ काम नहीं करता। इंडियन पेरेंट्स के सामने तुम बाउंड्रीज रखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इंडियन पेरेंट्स को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो खुद की शांति खुद ही बचा के रखो। ट्यूशन जाओ, कोई भी बहाना ढूंढो, मैं तो पढ़ाई का बहाना ढूंढती थी। मेरा ट्यूशन वाज एन एस्केप फॉर मी।
तो कोई भी बहाना ढूंढो, बस घर से खुद को दूर रखो, पढ़ाई के बहाने, किसी भी बहाने। और जब तुम घर में रहते हो तो इमोशनली खुद को उनसे दूर रखो। इसी तरीके से तुम सर्वाइव अभी कर सकते हो इस फैमिली इन्वायरमेंट में। और जितना हो सके खुद को हील करो। खुद के ट्रॉमास को कैसे हील करते हैं मैं इसकी वीडियो बाद में बनाऊंगी, बट आई होप कि इट हेल्प यू। एंड लिसन, जाते हो तुम अभी अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से, हो सकता है स्कूल में भी जाते हो, इंडिया की स्कूल कल्चर भी उतना अच्छा है नहीं, पर एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, तुम्हें हो सकता है अभी कोई होप ना दिख रही हो, तुम्हें हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि मैं लाइफ में कहीं नहीं जा पाऊँगा या जा पाऊँगी, पर तुम्हें नहीं पता कि आज से 5 साल बाद तुम्हारा जो फ्यूचर सेल्फ है वो तुम्हें देख के तुम्हें ये बोलेगा कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू केप्ट गोइंग ऑन। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा 5 साल बाद जो हायर सेल्फ है वो कहाँ है। मुझे नहीं पता था और मैंने वो गलती की है, एंड थैंक गॉड आई सर्वाइव्ड, थैंक गॉड आई सर्वाइव्ड। तो तुम जाओगे इन मोमेंट्स में, पर ये मत भूलना कि आज से 5 साल बाद तुम ही खुद को देखोगे और तुम इतनी खुशी से देखोगे और तुम खुद को ये बोलना चाहोगे, बताना चाहोगे कि यार हार मत मान, हार मत मान, हार मत मान। ओके, सो मैं ये बोलना भूल गई, बट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, आई नीड योर सपोर्ट, लव यू।